Hello everyone. So I hope that you understood the concept of increasing and decreasing, right? So today we will study the examples based on that questions, that how we are going to solve, right? So suppose listen that see there are here two types of question. एक तो ऐसी टाइप आएगी कि फंक्शन दिया जाएगा और आपको ढूंढना है कि ये इंटरवल में पॉसिबल है कि नहीं है, एंड दूसरा कि इंटरवल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको ढूंढना है कि कौन से इंटरवल में होगा. सो बोथ द टाइप्स वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है. सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. नाउ वन एग्जांपल 9 इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट. एग्जांपल 9 is given in your textbook. See, now I will pick up the examples which are means based and now which are based on example 9 that I will not be solving, that you will be solving, ठीक है. चलो, it is given that prove that f of x is equal to cos x. We have to prove that f of x is equal to cos x. Okay, you take out your textbook. In that you read the question. Example 9 is given. F of x is equal to cos x is strictly decreasing in interval 0 to pi and strictly increasing in interval pi to pi 2 pi and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. तो listen to me first of all. हमें फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, that I am writing, ठीक है. फर्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है, strictly decreasing in 0 to pi, right. I have written the short form SD, means strictly decreasing, right. चलो, तो by strictly decreasing condition के लिए yesterday we have done that if f dash of x is less than 0, इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि f dash of x is less than 0. तो भाई सबसे पहले करेंगे कि f of x is equal to cos x. Now you differentiate this with respect to x. So f dash of x is equal to minus sin x. F dash of x is equal to minus sin x, right. अब now listen to me very carefully, ठीक है. Minus sin x is there. Now in 0 to pi, सी कल हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, राइट, फॉर साइन एक्स. तो साइन एक्स का अगर ग्राफ देखे 0 टू पाई के बीच में, ठीक है, सी लाइक दिस वे द ग्राफ वाज लाइक दिस वे. 0 पाई 2 पाई. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है. तो साइन एक्स इज पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव होगा ना. सी लिसन व्हाट आई एम टेलिंग ओवर हियर, दैट इज in the interval 0 to pi we have to prove that the function is strictly decreasing, right. तो f of x is given cos x. if we find f dash of x then it is minus sin x. अब भाई ये चीज़ तो क्लियर है कि ये साइन का ग्राफ है, ठीक है. ये साइन के ग्राफ में सी यू लिसन 0 टू पाई इज गिवन द इंटरवल. तो इन दिस 0 टू पाई इन दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड लोअर पार्ट इज नेगेटिव. तो 0 टू पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा ना. देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव. अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता, हाँ, माइनस साइन नहीं होती, देन एफ डैश ऑफ एक्स वॉज सपोज. हाँ, अब ये पर्टिकुलर थिंग पे अगर ये माइनस कॉस एक्स होता तो एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स आता, राइट. नाउ तो ये साइन एक्स आता, तो हियर 0 टू पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाता, पॉजिटिव. तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा वो, बट यहाँ पे इट इज माइनस साइन. सो एफ डैश ऑफ एक्स, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इट इज नेगेटिव, सो लेस देन 0. और मेरी बात को समझना, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, राइट, लेस देन 0 ही आएगा, राइट, फॉर दिस केस.
चलो तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, yesterday we have done f dash of x is less than 0 then strictly decreasing, right? So function is strictly decreasing in 0 to pi. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द थिंग व्हाट इज गिवन, f of x is given that is cos x. Now we have to prove that the function is strictly decreasing. SD over here means strictly decreasing in 0 to pi. So by f of x is cos x, so you find f dash of x that is minus sin x. Now minus sin x, in between 0 to pi the value of sin x that is means f of f dash of x that is positive. If sin x is positive then minus sin x will be negative. Therefore f dash of x is negative means less than 0. तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो कब होता है, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, इंटरवल इज गिवन 0 to pi, so 0 to pi. So this is the proof for first part. Now in this only second part is there. ठीक है, we have to prove that the function is strictly increasing in pi to 2 pi. तो strictly increasing तो अब मेरी बात को समझना ध्यान से. वी हैव टू प्रूव एस आई मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई. वी हैव टू प्रूव दिस. हाँ चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज गिवन. नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स. नाउ इन पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई के बीच में ये साइन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, बिकॉज इट इज लोअर. ये नेगेटिव की लाइन है और ये पॉजिटिव की लाइन है. ऊपर जो पार्ट रहेगा वो पॉजिटिव है, ये लाइन के नीचे जो पार्ट रहेगा वो नेगेटिव है. तो पाई टू 2 पाई के बीच में पूरा पार्ट जो है दैट इज नेगेटिव. अब अगर ये नेगेटिव है साइन एक्स, तो नेगेटिव का भी नेगेटिव व्हाट विल बी देयर, नेगेटिव एंड इट्स नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. And you know that whenever the function is whenever the f dash of x is greater than 0, it is strictly increasing in pi to 2 pi. ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड नाउ. चलो, तो बाय फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आई होप दैट यू अंडरस्टूड. तो अब थर्ड पार्ट करते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड पार्ट आई विल टेल यू, yesterday I have told you one thing, that if the function is strictly, if the function is increasing also and if the function is decreasing also, then this function means whole over 0 to 2 pi के बीच में ये increase भी हो रहा है और decrease भी हो रहा है. ठीक है, means what, the function here we can also write. So ठीक है, तो listen to me now. थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में दैट इज द फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, बट इन कौन सा इंटरवल पे, 0 to 2 पाई. तो भाई 0 to 2 पाई पे आप क्लियरली देख रहे हो. ठीक है, in third part we have to prove that the function is neither increasing nor decreasing. तो भाई ये 0 to pi के बीच में तो इंक्रीजिंग है, मतलब 0 to pi के बीच में जो हमने कैलकुलेट किया, राइट. तो 0 to pi के बीच में डिक्रीजिंग था, सॉरी डिक्रीजिंग था 0 to pi के बीच में, ये पॉजिटिव था 0 to pi के बीच में, इसलिए डिक्रीजिंग आया. अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया. अब पाई टू 2 पाई के बीच में ये फंक्शन नेगेटिव है. ठीक है, मतलब ये एक्चुअली साइन एक्स नेगेटिव है, बट नेगेटिव का भी नेगेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया. ठीक है, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो अब दोनों पार्ट हो गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो गया. तो अगर दोनों का कंबाइन करते हैं हम 0 to 2 पाई के बीच में, तो इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ठीक है,
neither increasing nor decreasing. Why it is there? Because we know that in particular interval, if it is increasing also and if it is decreasing also, then we cannot write. यहाँ पे तो क्या था, फर्स्ट में 0 to पाई तक ही था, ठीक है. सो ओनली वन पार्ट वॉज देयर. Second part only from pi to 2 pi was there, but in third part 0 to 2 pi, so both are there. Now it is not possible because the function is increasing also and the function is decreasing also, so it is neither increasing nor decreasing, right? So all the three parts we have proved. तो ये एक टाइप है क्वेश्चन की, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको दैट इंटरवल दिया रहेगा, आपको प्रूव करना है सिर्फ, राइट, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो ये सब चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट. हाँ, अब और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बट नॉट दिस टाइप, अनदर टाइप. व्हाट इज द टाइप? यू हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. मीन्स अब ये इंटरवल दिए नहीं जाएंगे आपको खुद ढूंढने हैं कि कौन से इंटरवल पे होगा, राइट. सो वी विल डू वन सम इन दैट. Now one function is given, that is f of x is equal to x square minus 4x plus 6, right. So what you have to do? You have to prove that this function is strictly increasing, but in what interval? You have to find the intervals. Sorry, you have to prove, you have to find the intervals in which given function is strictly increasing or strictly decreasing. ठीक है. चलो तो भाई, चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लेकिन अब करें कैसे, राइट. एक फंक्शन दिया हुआ है भाई, कि बोल दिया कि भाई आप खुद ढूंढो, इंटरवल भी आप ही करो और प्रूव करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल पे है, और प्रूव करो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल पे है. बट you know that you to find the function strictly increasing or strictly decreasing, we must know that the function, we must know that f dash of x. So first of all we will find f dash of x. So you differentiate this, right. F dash of x is equal to 2x minus 4, ठीक है. 2x minus 4. हाँ, अब मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है. f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. तो f डैश ऑफ x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4, ठीक है. नाउ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दैट इज, अब ये फंक्शन जो है 2x माइनस 4, हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. हाउ वी विल फाइंड? ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे जीरो होगा, राइट. 2x minus 4 you compare it with is equal to 0. That 0 is equal to 2x minus 4. 4 is equal to 2x. It implies that x equal to 2. Means अगर x की वैल्यू 2 है, if x is equal to 2, then this particular function f means f dash of x, that is 0, means it is critical point. Okay, this is nothing but it is critical point, right. It is nothing but it is critical point. हाँ, अब सेकंड थिंग, ये तो हुआ फर्स्ट, मतलब ये तो हुआ भाई फर्स्ट थिंग कि ये हमने ये किया. सेकंड थिंग, यू सी दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन, राइट. अब पोलिनोमियल फंक्शन की जो मतलब सी लिसन, पोलिनोमियल फंक्शन इज दैट, तो उसका डोमेन क्या होता है? ऑल द रियल नंबर्स. सो कैन आई राइट इट ऑन द नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टिल इंफिनिटी. मैं ये तो लिख सकता हूँ ना कि ये जो है ये पूरा सेपरेट पार्ट है, ठीक है.
क्रिटिकल पॉइंट ये है 2, राइट। चलो, तो हाँ, अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दैट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, तो उसकी जो डोमेन होगी दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। दैट यू ऑल नो, डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी। चलो, तो now what we are going to do, what is our critical point 2, so take that point, ठीक है। till here have you understood this? So it was looking like z, so I wrote it again, yes, now it is 2, ठीक है। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, हमें पता नहीं है भाई कौन से इंटरवल लेंगे, 1 to 2, 1 to 3, 3 to 4, 3 to 5, 1 to infinity, 2 to infinity, बट नाउ यू लिसन टू मी। हमें ये पार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि इसे दो पार्ट में, मतलब या तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 या तो फिर 2 टू इन्फिनिटी। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, ये 2 टू इन्फिनिटी जो है इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो, 3, 4, 5, 6, एनी वन यू चूज। आई एम टेकिंग x इक्वल टू 4, मीन्स हियर आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस आई एम टेकिंग ओवर हियर 4, ठीक है। इफ आई विल कीप x इक्वल टू 4 देन व्हाट आई विल बी गेटिंग f डैश ऑफ 4 is equal to 4 minus 4, means it is nothing but it is greater than 0। अब देखो भाई 4 लिया तो इसके आगे कोई भी लेंगे तो भी ये सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मीन्स सेम आंसर आएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये आंसर जो है वेरी करेगा बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 4, 5, 3 भी लोगे तो भी 2 मत लेना, डोंट टेक 2 बिकॉज 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट पे तो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 0 है, ठीक है। चलो, तो कोई भी पॉइंट लो, 3, 4, 5, 6, 7, एनी पॉइंट यू टेक टिल इन्फिनिटी देन इट इज ग्रेटर देन 0, मीन्स in between this interval, in between 2 to infinity, f dash of x is greater than 0। now you come back to this minus infinity till 2, ये पॉइंट पे आप मतलब इन बिटवीन दिस टू एनी नंबर यू टेक, फॉर एग्जाम्पल लेस देन 2 जो है, 2 के लेस देन, इसी नंबर लाइन पे जब लेफ्ट हैंड साइड हम मूव करते हैं तो फंक्शन जो है वो मतलब जो फंक्शन नहीं लेकिन ये जो नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो ये हमेशा डिक्रीज होता है। मीन्स 2 है तो यहाँ पे 1, 0, -1 ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज होगा व्हेन वी गो ऑन राइट साइड। तो 2 के लेस मतलब 1 रखेंगे ना, इफ यू कीप 1 तो f डैश ऑफ 1 2 into 1 minus 4, 2 1 जा 2 minus 4 that is minus 2 is less than 0। तो देखो भाई अगर 1 ही रखा हमने, इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ 2 ऑन लेफ्ट साइड इट इज 1, तो 1 रखा, 2 into 1 that is 2, 2 minus 4 that is -2, तो -2 is less than 0, तो उसके लेस जो वैल्यू रखेंगे तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली, so means it will be less than 0 only, right। so what we are going to do, we are going to write it as over here f dash of x is less than 0, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझो ध्यान से, that whenever f dash of x is less than 0 then what is our that function, whenever the f dash of x is less than 0 then it is strictly decreasing, right, strictly decreasing, and here it is strictly increasing। अगर मैं इसे लिखूँ प्रॉपर तरीके से तो हाँ, अब ब्रैकेट में जो क्लोज इंटरवल आएंगे कि ओपन इंटरवल आएंगे, ओपन आएंगे, क्यों, माइनस इंफिनिटी टिल 2 एंड 2 से लेके
infinity. It is strictly decreasing. It is strictly increasing. ठीक है, आई बात समझ में? अब मेरी बात को समझो। अब अगर ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया मतलब कैसे करेंगे? सेम, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन अगर ऐसा कहा कि भाई आप सिर्फ ढूंढो कि कौन से पॉइंट में सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है, और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज नॉट देयर, देन व्हाट 2 विल कम, बिकॉज f dash of x less than equal to 0, then here closed bracket. Here also same way, only increasing is given, then 2 you have to consider, here not consider because equal to sign is not there. Yesterday we have studied that, right? तो ऐसे आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपको ऐसा कहे थे कि भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, यू फाइंड द इंटरवल्स मीन्स इट्स ओनली डिक्रीजिंग, तो भाई डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, तो इक्वल टू 0 2 भी कंसिडर होना चाहिए, तो 2 कंसिडर होगा तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, दैट्स इट। माइनस इन्फिनिटी तो ओपन ही आएगा, बट हियर क्लोज्ड आएगा। हियर ऑल्सो सेम वे, 2 के लेफ्ट साइड पे क्लोज्ड आएगा, हियर इट इज ओपन ओनली, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट? चलो, तो आई होप दैट दिस यू अंडरस्टूड, राइट? अब और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक है? यू राइट नाउ यू नोट डाउन दिस इन योर बुक। चलो, तो वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल। ये तो भाई ये चीज़ थी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब वन एग्जाम्पल वी विल टेक वेयर क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट देयर, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, तो कैसे करेंगे? f of x is equal to 7x minus 3। हाँ, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है? ये एग्जाम्पल मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं, एक्चुअली मैंने वो चेक नहीं किया, लेकिन मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ, फाइंड द इंटरवल f of x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग, ठीक है? फाइंड द इंटरवल, तो ये जो फंक्शन है उसमें इंक्रीजिंग होगा, राइट? तो चलो भाई, सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, f डैश ऑफ x। हाँ, तो ये अब 0 तो आए, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो f डैश ऑफ x डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया, 7 आ गया, तो हाउ वी विल प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? कैसे प्रूव करेंगे? सी, एक तो ये मेथड है कि ग्राफ ड्रॉ कर दो, राइट? यू प्लॉट द ग्राफ, f of x is equal to 7x minus 3, f dash of x is equal to 7, its graph will look something like this way. So from the graph we can see when x is increasing, the function is also increasing only, right? So then also it is proved. Second thing, अगर बात करोगे तो f dash of x it is 7 means always greater than 0. So f dash of x is always greater than 0. 7 is there, it is already constant. So it is already 0 for all, for x belongs to R, ठीक है? चलो, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली बाय सीइंग हमें पता चल जाता है कि 7x माइनस 3 एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का स्लोप वगैरह आप सब कैलकुलेट करो तो वो वैसे भी मतलब ऐसा ही ग्राफ मिलेगा इसका, राइट? तो इट इज़ इंक्रीजिंग ओनली, राइट? चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। Now we will be meeting in the next video. Till then, thank you very much. Have a great day.